So did we share the links? The links are already shared. The chat is not working. Again, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अभी I can see there's nobody who is joined. Hello everyone, good evening and welcome back to the Yschool live show. We've missed you all a lot. It's been long that we connected last. It's really good to be connected virtually after a long time. So we've been previously talking about JEE Mains and NEET. आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था लास्ट ईयर, कैसा रहा, हाउस द काउंसलिंग बिन, एंड नाउ we've come for the first time for the new batch, the people who will be giving their JEE Mains exam tomorrow and in the subsequent time in the days that are coming, and they'll be attempting it first time. So we are here today to take all the queries regarding your attempt, how you should maximize it, what is the best way to handle the exam pressure, how to utilize those 3 hours. And we have our lovely guests and our experts today with us, Tejpreet sir and Deepak sir. Tejpreet sir, I think everybody knows him quite well now. He's been always there in all the shows, and he's been the main expert here who's been handling all your queries regarding counselings and everything. For the students who've joined us for the first time, I would just like to reiterate he's been the director of Science Wing at Edu Square, is also the COO at Edu Square and Y School, has been guiding students for more than a decade now, helping them to handhold them to reach their dream college. Even after that, to get them the make the right choice for their careers and whatnot. Also, even regarding admissions, if you have to choose your streams, everything. He's one person who can give you the best guidance ever. And he's also worked in FMCG sector before he came into education, and fortunate enough for the students to guide them for so many years. Welcome, sir. Welcome again. Thank you so much, everyone, and welcome, students. Thank you for such a kind and such a warm introduction. Basically, students, we really welcome you to our channel today, whichever channel you are joining in through YouTube or through Facebook. And I assure you that this particular lecture and the coming lecture series will definitely help you towards the last and very important phase of your 2 years journey. अभी ऐसा टाइम है जिसमें आप लोगों ने जो प्रिपरेशन की है लास्ट 2 years में या लास्ट 4 years में, उसका जो एक्चुअल एग्जाम टाइम है और उसके बाद के जो फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम पहले नहीं सोचते हैं, बट इस टाइम पे इट बिकम्स रियली क्रूशियल एंड बहुत anxious moments होते हैं, उनमें we'll be there to help you and handhold you. Yes, as always, sir. And the second guest today, the second expert that we have is Deepak Goyal, sir. All the students who've been preparing for IIT and NEET for many years already know, from Ludhiana, already know Deepak, sir. He's been a chief mentor and educator at Edu Square, also a co-founder, and has been guiding students in all subjects, and specifically chemistry, for more than 12 years now. And also he's been mentoring and helping students in all their academic needs, how to, because he's an IITian himself, he's an IIT Delhi pass out, so he knows what it takes to clear IIT and how your preparation should be. He's already been doing that for many years, and today we are fortunate enough to have him guide all the students who will be appearing for their first exam in these coming days. Welcome on board, sir, and thank you for sparing the time. Thank you, ma'am. Thanks a lot for introducing me. And welcome, students. Welcome to this platform. So it's my first experience to be on this platform. Like ma'am and sir are already seasoned campaigners because they have done many shows so far. But I would like to be part of this in future also. And I'm looking forward to this, where I could bring in my experience, I could share my personal experience and could help students in getting benefited from that. I'm really looking forward to this. Thank you. Thank you so much. Thank you so much, sir. So, I think we'll straight away start from, few of the things that I really want to know and, discuss that I think most of the students who are appearing in this attempt, or even, afterwards, I think there are 4 attempts in JEE Mains this year, sir?
Yes, ma'am. We have 4 attempts for JEE Mains this year. For NEET, it is yet to be announced, but most probably there will be 2 attempts. Okay, all right. So there are multiple chances that students are getting. So for the students specifically, who will be giving their attempt in this month and in this week, in the coming days. So the first question, first very important thing that I want to know for the students is, what should be the last minute preparation? Like there could be some students who will be giving it tomorrow or day after or in subsequent days. Those who still have 2 3 days. So, is there anything that they need to focus on? How should they keep their school? If we talk about academically and non-academically, both ways. So, what are the tips that you would like to give them at this point of time? Academically, I think the most important part is not to get into anything new. Solving any new question at this time doesn't make any sense because you just have to be fresh with your thinking, fresh with your mindset, and this is the best way forward. The only thing that comes to my mind is that you can focus on during the last leg of your preparation is to basically recall all the cramming part, so that you should have that in your recent memory, in your cache memory, so that if you're confronted with such questions, you should be able to answer them properly. So, in that, inorganic chemistry in particular, where a lot of cramming is required, certain important formulas from maths and physics, where again students get stuck with certain things. This is, I think, the only target area that where the students should be focusing on, because if they have all that in recent memory, then definitely they can relate to the questions and can answer better. But beyond that, I don't think so. They should be getting into anything which is complex, anything which is new, because this is only going to make it things complex. Where they can just revise what they've already done. Right. Fair enough. And to add on to the non-academic part, I would like to suggest that get your kits ready, like your admit card, your photo ID proofs, whatever documents are to be taken along. Just get them ready and put it in a safe place at your home. ऐसे भी मत करना कि छुपा दो मिले ना लास्ट मोमेंट पे. So उनको अपने टेबल पे या अपने कहीं पे आप लोग जो है वो, लेकिन सारे डॉक्यूमेंट्स लास्ट मिनट के लिए या जब सुबह एग्जाम देने जाना है उससे पहले के लिए मत रखो, बिकॉज अननेसेसरी एंजाइटी हो जाती है. सेकंड, आपके घर से जो भी आपके टेस्ट सेंटर का डिस्टेंस है या जो भी आपका टेस्ट का सेंटर बना हुआ है उसको एक बार एग्जाम से पहले विजिट कराओ. एंड बिकॉज जैसे अभी यहाँ पे बहुत सारी रैलीज चल रही हैं, कई कई बार ट्रैफिक जैम्स हैं, तो उसका मार्जिन रख के जाओ, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे वी डोंट वांट एनी अनटोवर्ड इंसिडेंट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, या आपका जो बेसिक एनर्जी है उसमें नहीं लगनी चाहिए. थर्ड, बिलीव इन योरसेल्फ. देखो 2 साल में हमने अच्छी मेहनत की, अब एक रात से कुछ चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, जैसे दीपक सर ने बताया, आपके जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उसमें हो सकता है कोई एक आधा फॉर्मूला मिस हो जाए, बट इसके अलावा मेजर पेपर कंसेप्चुअल बेस्ड आता है, हार्डली 10 to 15% क्रैमिंग बेस्ड आता है. सो मेजर पेपर आपकी 2 साल की प्रिपरेशन पे है. वो जैसी भी प्रिपरेशन थी, चाहे आपने अच्छे से प्रिपेयर किया था, चाहे आपने उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं भी किया था, बट पेपर को कॉन्फिडेंटली देने जाओ, सो दैट व्हाटएवर प्रिपरेशन लेवल यू आर एट, आप उसमें से मैक्सिमम आउटपुट देके आ सकते. राइट. एंड वन मोर थिंग, कई बच्चों ने अप्रोच किया है कि सर हम फरवरी वाला अटेम्प्ट मिस कर दें अगर प्रिपरेशन नहीं है, बिकॉज इतनी जल्दी हो गया, कोविड के कारण लास्ट ईयर पूरा डिस्टर्ब था. तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि बेटा ऐसा मत करो. अगर आपने पेपर फिल किया तो डेफिनेटली दे के आओ, बिकॉज काफी सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि हम ये वाला अटेम्प्ट मिस कर देते हैं, अगला अटेम्प्ट ज्यादा प्रिपरेशन से देंगे. तो अगर कम स्टूडेंट्स हैं तो परसेंटाइल बेटर आने का भी चांस हो जाता है. तो हमें 4 के 4 अटेम्प्ट देने चाहिए, बिकॉज बेस्ट ऑफ 4 रखना है. कई बार ऐसा होता है कि 300 मार्क्स के पेपर में 200 स्कोर करके परसेंटाइल कम आ जाती है और 160 स्कोर करके ज्यादा आ जाती है. तो वी शुड टेक ऑल 4 चांसेस फॉर श्योर. And one last thing that I would like to add is because of the COVID protocol, certain things have also been added, like hand sanitizer, masks. So just be careful about them also, because this is not something which is normal. Though there's a chance that you might miss out on carrying a mask, and last minute panic can then disturb you.
because Very it might be the case that exam authorities might not allow you to enter the premises. So just be ready with all those small things also, because this is not something which is we are habitual with. right. I think very important points. I think both the experts have mentioned here. Academically, I think the main point that I can reiterate is definitely at the last moment you should not be picking up something new. Even if you have to revise, so I mean, we'll be talking about revision tips also. Then also there are certain tips and tricks that sir would be sharing. What should be the revision like if you have 2-3 days with you. So if there is anything that we should focus on, and also like Tejpit sir mentioned that getting all your things ready is very important. I think that has happened with many students also in the past, because we've been interacting with so many, especially you sirs. So that at last minute they might forget their photo, they might forget their ID, whatever is required. And now there are a lot of protocols, and there have been a lot of things that have been added, like masks and sanitizers. So please make sure take a good look. Water bottles. Water bottles, take a good look at whatever is required जो भी mentioned है उसमें, and be very sure, doubly sure जो भी चीजें उसमें mentioned है वो सब आपने carry करी हैं. There is not even a single thing that you're missing out on. If it is a pen, it is a pencil. If you require an HB pencil, if you require a black pen or a blue pen, be very specific. जो भी instructions दी गई हैं, you have to be very specific with it, because you cannot take any chances, right? Or otherwise, and also one thing that is also again very important that sir mentioned, that looking at your center before, वो जाकर देखो डिस्टेंस कितना है, कितना टाइम लगता है, एंड अपना बफर टाइम जरूर लेकर चलें. बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचें कि लास्ट मिनट पे ओके ठीक है, अगर 10 o'clock एग्जाम है तो आई विल बी रीचिंग देयर बाय 9:55 9:50. नेवर डू दैट. ऑलवेज गिव योरसेल्फ एटलीस्ट हाफ एन आवर बफर टाइम, so that कुछ भी, if there is anything that happens, car breaks down, anything, you have enough time for you to gain that time and reach there on time, right sir? Absolutely, absolutely. And एग्जाम टाइम से नहीं बेटा, रिपोर्टिंग टाइम से आप लोगों ने लेना है. जैसे आपका रिपोर्टिंग टाइम आई थिंक 1 hour पहले होगा या 1.5 hour पहले होगा. जैसे भी आपके एडमिट कार्ड पे रिपोर्टिंग टाइम है, उससे भी आप 15 to 20 minutes या हाफ एन आवर का बफर लेके चले. बिल्कुल बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिपोर्टिंग टाइम से आप पहले ही हाफ एन आवर का, बिकॉज आप जल्दी पहुंच जाएंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो हार्म इन दैट. But if you're late, then I think the whole temperament of the examination also changes then. अगर आपकी स्टार्टिंग में ही, इट हैज हैपेंड आई थिंक विद अस आल्सो बिफोर, कुछ भी हो, आपका छोटा सा भी कोई काम हो, उसके लिए अगर आप पहले ही थोड़ा सा लेट हो जाए, 5-10 minutes का भी फर्क पड़ जाए, वहीं पे योर होल माइंड स्टार्ट्स वर्किंग इन अ लिटिल laid back, a little negative way कि oh मैं late हो गया, panic starts to create it. And believe me, this exam, more than your preparation also, these 3 hours, it only depends on how you handle it. On those 3 hours, it's the 2 years that you've been preparing for boils down to these 2 hours. अगर इन 3 घंटों में अगर आप अपना टेम्परामेंट, अपना एंजाइटी, अपनी जो स्ट्रेस लेवल्स है उसको नहीं मैनेज कर पाओगे, तो द थिंग्स कैन go here and there. So that is very important. So yeah, now I mean, like I was talking about, managing your temperament, and these 3 hours are very important. So sirs, I mean, what are the tips that you would like to give to them, once they have reached their exam center? Now then once the exam starts, so these 3 hours, how should they manage it, and what is the strategy that they should follow? Is there anything specific, based out of your experience, आपने इतने बच्चों से भी बात की है, that they should focus on? बेटा सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से पढ़नी है. जैसे इस बार पैटर्न में चेंज है, जो सेक्शन बी है उसमें यू विल बी हैविंग चॉइस. देयर आर 10 क्वेश्चंस व्हिच वुड बी देयर. आप लोगों ने उसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं. तो इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑल्दो जेईई मेंस में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बट फिर भी एक बार स्टार्टिंग में 2 minutes लगा के पढ़ लेना इज अ एडवाइजेबल ऑप्शन. उसके बाद जिन बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी होती है, उनको एग्जाम को एक बार जब क्विकली आप ब्राउज थ्रू कर देते हो सारे क्वेश्चंस को, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि ये किस लेवल का पेपर आया हुआ है, राइट? बिकॉज किसी एग्जाम में 200 मार्क्स भी कम है, किसी में 250 भी कम है, किसी में 150 भी बहुत ज्यादा स्कोर है. सो एग्जाम अगर आप लास्ट 5 years देखो, और हर बार लास्ट 2-3 years से जब से ऑनलाइन हुआ है, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो रहे हैं. लाइक लास्ट ईयर 16 डिफरेंट पेपर्स थे. तो इस तरह के जो पेपर हैं उसमें लेवल का कई बार डिफरेंस आ जाता है, स्पेशली जिनकी बाद में डेट्स है, सेकंड और थर्ड डे है,
वो लोग फर्स्ट डे के बेसिस पे अपनी जजमेंट बना लेते हैं कि पेपर इस लेवल का आ रहा है, हमें एक सेट माइंड में स्कोर लेके चले जाते हैं कि हमें इतना स्कोर करना है। ऐसा कुछ मत लेके जाओ, आप अपने 3 आवर्स में बेस्ट परफॉर्मेंस देने के माइंडसेट से जाओ। जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं और जो आपके इजी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले उनको अटेम्प्ट करो। देखो जो पेपर है उसमें 3 आवर्स में जो मैक्सिमाइज करता है अपने स्कोर को, उनका रैंक बेटर आने वाला है। ऐसा नहीं देखा जाएगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस किसने ज्यादा किए, बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड इजी क्वेश्चंस का सेम स्कोर है, सब 4 मार्क्स वाले हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हमेशा निकल जाता था, कोई क्वेश्चन आपका फंस गया, नहीं निकल रहा है, तो बच्चे कई बार क्या करते हैं कि उसको ईगो पे ले जाते हैं कि मैंने इसको तो सॉल्व करना ही करना है, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन ही गलत था, सबको ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं। तो इस तरह किसी भी क्वेश्चन में बियॉन्ड अ पॉइंट टाइम मत वेस्ट करो। इनिशियली इजी क्वेश्चंस और जो कम टाइम में होते हैं और जिन चैप्टर्स में आपकी एक्यूरेसी जनरली ज्यादा बेटर रहती है, उनको अटेम्प्ट करो, और फिर लास्ट में आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आ जाओ जब आपके पास टाइम बच गया, सो दैट आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो रहा है। कोशिश होनी चाहिए कि लेट से आप 200 स्कोर करने वाले हैं, तो फर्स्ट 1 आवर में आप एटलीस्ट 90 टू 100 स्कोर करके बैठे हुए हैं, फिर नेक्स्ट आवर में 60 टू 70 स्कोर कर रहे हैं, ताकि लास्ट 1 आवर में आपके पास मिनिमम स्कोर करने के लिए रहेगा और डिफिकल्ट एंड लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे। जो चैप्टर्स जो सब्जेक्ट्स का सीक्वेंस है वो बच्चों ने पहले से प्रैक्टिस कर रखा होता है, मोस्टली बच्चों ने जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है। लेकिन अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया, तो उनको अब लास्ट मोमेंट पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जिस सीक्वेंस में आया है पेपर, उसी सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर सकते हैं, या जिस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है उससे स्टार्ट करके जैसे जैसे जिन सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस जैसे जैसे उनका कम होता जाता है, उस ऑर्डर में कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट अ जेनरिक रूल, बिकॉज कुछ बच्चों के लिए, माइनॉरिटी बच्चों के लिए वीक टू स्ट्रॉन्ग भी वर्क करता है। लेकिन वो मेथड वही बच्चे फॉलो करें जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर रखी है इस पैटर्न, राइट। अगर कुछ भी नहीं प्रैक्टिस किया तो जिस सीक्वेंस में आया हुआ उसी सीक्वेंस में सब्जेक्ट्स अटेम्प्ट करो, बट क्वेश्चंस इजी, देन मीडियम, देन डिफिकल्ट, एंड लेस लेंथी डायरेक्ट क्वेश्चंस टू लेंथी क्वेश्चंस। I think the gist is कि एक तो सेंट ही नहीं होना क्वेश्चन को लेकर, राइट। आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि एक क्वेश्चन हमें क्या लगता है, क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, ऐसा तो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, ये तो मैं करके ही रहूंगा, एंड देन वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, वी एंड अप वेस्टिंग आई थिंक इवन 5-10 minutes देयर ऑन अ क्वेश्चन, उतने टाइम में, जबकि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस 4-5 मिनिमम क्वेश्चंस वी कुड हैव अटेम्प्टेड। पर वी हैव टू कीप दैट इन माइंड बच्चे, दैट स्कोर तो आपको सेम ही मिलना है। द फैकल्टी तो वहां पर जब भी कंप्यूटर ने जब भी आपके स्कोर को कैलकुलेट करना है, वो ये पॉइंट को नहीं रखेंगे कि हाँ ये बच्चे ने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है तो विल गिव एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दिस। मार्क्स आपको उतने मिलने हैं, तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि डोंट गेट अटैच टू एनी क्वेश्चन, प्लीज डोंट गेट सेंटी अबाउट इट कि ये वाला तो मेरा फोटे है, ये वाले क्वेश्चन तो मैं पक्का करता हूँ, डोंट गेट अटैच टू इट एट ऑल। फोकस ऑन जो भी क्वेश्चन मिनिमम टाइम में हो रहे हैं, सबसे पहले वो कर लो, बिकॉज I think, sir, just to reiterate and just to, take it further, a lot of things depend on, how you approach how your paper goes is on the approach and, आप begin कैसे कर रहे हो। अगर आप starting में किसी question पे अटक गए, तो जैसे हम पहले बोल रहे थे कि, हम panic create हो जाता है, the same then again will happen here। तो एक panic आ जाएगा, ओह half an hour चला गया, मेरे तो अभी 10 question नहीं हुए हैं। वहीं पर अगर आप मिनिमम छोटे छोटे क्वेश्चंस कर रहे होंगे और आपको लगेगा अभी तो हाफ एन आवर में आई हैव अटेम्प्टेड लाइक 25-30 क्वेश्चंस, सो अगेन द गेम विल बी टोटली डिफरेंट, सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट। आई थिंक दैट इज व्हाट तेजस्वी सर इज आल्सो मेंशनिंग, अगेन द स्ट्रेटजी, अगर आपने स्ट्रेटजीज प्रैक्टिस की हुई है देन डेफिनेटली एंड यू नो व्हाट वर्क्स फॉर यू, देन गो विद इट। अदरवाइज एज सर सेड यू हैव टू फॉलो द फ्लो, जैसे है sections वैसे जाओ, or otherwise if you know what is your strength, what are your weaknesses, weak subject, then focus on your strong subject first, and then on going forward going to the weak and the weakest ones. And also students who are joining us, if you have any specific query, students, you can put it in the comment section so that our experts can handle those, and we are covering here general things, but अगर उसके अलावा भी आपका कोई specific query है, you can put it in the comment box and we'll be happy to answer all those queries. Sir, moving forward, sir, how important this is, sir, इस बार ये multiple attempts हैं, and also in this, I mean, there are multiple windows every time, in JEE Mains, so जिन बच्चों का slot थोड़ा later है, maybe
वीक के एंड में, जैसे जब से कल से लेकर, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर देम टू look at the previous year paper, like the previous attempts, like जो बच्चे अभी कल attempt कर रहे होंगे, परसों कर रहे होंगे, should they be discussing the questions with those students, with their friends, or should they not do it and not get panic? What is the take on They that? should, because generally what basically NTA does, they follow a fixed pattern. So in the initial attempts, if a particular concept has been asked, so there's a very high probability that they'll repeat that concept, but Okay. with a little bit increased level of difficulty. So if I talk about chemistry in general, also if they've covered a particular set of reaction in initial attempts, then there is a very high probability that that reaction topped up with certain complexity will definitely come in the later on attempts also. Okay. Even with maths also it happens like that only. So it is very important to basically understand what NTA is asking. So whenever you get an opportunity to go through the paper earlier attempts, you should give it the topmost priority, because it will basically set you up. Like for example, if some offbeat chapter has been covered, like last year, even last year also, chapters like biomolecules, chemistry in everyday life. So certain unexpected questions were asked from those chapters. So once you know that, for example, if somebody is asked for penicillin, then you know that something related to that can be asked, and it has happened that in other exam another medicine would have been asked, and it sets you right for that. Like I need to focus on the structures of medicines, I need to focus on this particular amino acid, all these things. So it's very important to basically get an opportunity, if you get an opportunity to basically go through the earlier attempts, because NTA almost tries to be very consistent with the pattern. The level of difficulty will definitely increase. Okay. So definitely they should be talking to their friends, you know, क्या pattern रहा था या कुछ, if they can get some questions, some concepts that were already asked. They'll be able to get them online very easily, because every time whenever the paper is conducted, within few hours the papers tend to be on different websites. So I don't think so that should be a concern. They ideally they should refer net only, because that ways they'll be able to get the entire paper, and even the solutions, even the basic hints, like what they should have done with similar questions, and what should be their approach during their preparation. So I think during these exam attempts, this is one of the most important things. Okay, so they should not be, I think, doing anything else but just focusing on these questions and these papers, these concepts. Good That will enough. also do the good for them, right? Most of the Good things covered there, right? Please take note. I mean, those students who have their slots in the later days, जिनका अभी टाइम है, थोड़ा 2-3 दिन छोड़कर है, जब तक आपका एग्जाम है, उन दिनों में जितने भी एग्जाम्स, जितने भी स्लॉट्स निकल रहे हैं, प्लीज उसके पेपर जरूर देखें. Search it on the net and make sure that you cover all the questions and you see all the concepts that are covered there. But उसको देखकर, one thing is very important, उसको देखकर stress नहीं लेना है. Don't because every slot is different. Don't think that कोई ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो देखा वो बहुत difficult slot था or whatever it was, right? Because Tejpit sir, I think both of us have given CAT, so we can also understand this, because when I had given CAT, that was the first time the CAT had become online. So we didn't have before any preconceived notions, and we didn't know about it, and we thought कि पता नहीं कैसा आएगा और कैसे normalization कैसे होगी and all. So what happens is sometimes आपका कोई section बहुत difficult आया और आप सोचते हो ये तो बहुत difficult था, पर बाकी में पता नहीं difficult था या नहीं था, and उस चक्कर में you think you're doing good, but you think नहीं आपका attempt गलत जा रहा है, आपका attempt गलत जाता है, and you over attempt, right? आप तुक्के मारते हो, या you think that you have to get to a certain number, and then you end up having a lot of negative marking. This happened with me also. That's why I'm taking this point out here, so that students don't suffer. So how do they manage that, and इसमें वो उसको ऐसे कैसे handle करें? And one thing that comes from this again is how much attempt you would say is a good attempt. मतलब कितना minimum या maximum आप गिविंग द एक्सपीरियंस दैट यू हैव, आपने इतने सालों से देखा है कि कहाँ तक जाता है, कितना मिनिमम या मिनिमम अटेम्प्ट एक स्टूडेंट का होना चाहिए टू गेट इनटू दैट परसेंटाइल ब्रैकेट? सी देखो, मिनिमम एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट तो बहुत वेरिएबल है, बच्चे से बच्चा वेरी करेगा. डिपेंड करता है कि स्टूडेंट टारगेट क्या कर रहा है.
है ना. देयर आर सम स्टूडेंट्स जो टॉप 500 रैंक अटेम्प्ट कर रहे हैं, उनके लिए आई थिंक 80% टू 90% पेपर अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, राइट. बिकॉज अगर आप इफ यू आर टारगेटिंग टॉप 500 रैंक, तो जनरली आपका 75% प्लस स्कोर होना चाहिए. If you are targeting rank in top 10,000, अगर आप top 10,000 रैंक्स में आते हैं, तो आपको अपनी होम स्टेट में जनरली एनआईटीज में या जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वहां पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल जाती है, विच इज द टॉप मोस्ट ब्रांच. सो उसके लिए आपका स्कोर अबाउट 160 170 तक होना चाहिए आउट ऑफ 300. ठीक है. अगर आप 90 परसेंटाइल प्लान कर रहे हैं, तो 65 60 टू 70 स्कोर इज आल्सो गुड इनफ. सो विच इज लाइक 300 में से 60 इज वेरी लेस. 27-28% स्कोर हो गया, राइट. सो 30% आप मान लीजिए. सो 30 से लेस ही हुआ इनफैक्ट. सो इम्पोर्टेंट है कि आपका टारगेट क्या है. जो दो चीजें हैं जिनमें बैलेंस बनाना है पेपर में, दैट इज अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी, राइट. तो जनरली रूल ऑफ थंब क्या है कि सबसे पहले आप पेपर अटेम्प्ट कर लीजिए, जो आपको आता है उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए. उसके बाद जिन क्वेश्चंस में आप 2 या 3 ऑप्शंस को लेके कंफ्यूज्ड हैं, वहां पे आप एक इंटेलिजेंट गेस लगा सकते हैं. उसके बाद अगर आप जहां पे टारगेट कर रहे थे, आप उससे 20-25% स्कोर हायर तक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर चुके हैं. मान लीजिए कोई बच्चा 100 स्कोर टारगेट कर रहा था एंड 140-150 की ऑलरेडी अटेम्प्ट हो चुकी है, तो उनको फिर बहुत ज्यादा तुक्के मारने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर बच्चा 100 टारगेट कर रहा था, अभी अटेम्प्ट की 75-80 स्कोर कर पाया है, तो उन बच्चों को फिर रिस्क लेना पड़ेगा. फिर उस केस में जो जनरली बच्चे कर देते हैं कि सभी ऑप्शन से एक ऑप्शन मार्क कर देते हैं, जो आपने सबसे कम मार्क की हुई है. लेट्स से अभी तक जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, जो आपको आते थे या जहां पे आपका इंटेलिजेंट गेस लग गया, उसमें सबसे कम सी थे, तो आप बचे हुए क्वेश्चंस में सब में सी मार्क कर दीजिए. बट दैट इज अ वेरी वेरी रिस्की प्रोपोजिशन, और नॉर्मली मैं एडवाइस नहीं करूंगा. बट जस्ट इन केस कि आपका बिल्कुल ही पेपर खराब चला गया, आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, बिल्कुल ही आप का जो टारगेट स्कोर था, जो आप सोच के चल रहे थे उसके बहुत पीछे चल रहे हैं, फिर आप इस तरह की चीज कर सकते हैं. बट दिस इज अ, जैसे आप अगर कार्ड्स खेलते हैं तो ब्लाइंड खेलते हैं ना, ये ब्लाइंड हो जाएगी एक्चुअली, बट नॉर्मली एडवाइजेबल नहीं है. जनरली लग रहा है आपको कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कम जा रहा है या वो, राइट. बट उसमें आपको पेपर की थोड़ी सी नॉलेज भी होनी चाहिए, बिकॉज कई बार एग्जाम बहुत टफ आ जाता है और आपका जो एक्चुअल अटेम्प्ट हो रखा होता है वो भी सफिशिएंट होता है आपके टारगेट परसेंटाइल के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज वेरिएशंस है, बहुत वेरिएशंस है मल्टीपल टेस्ट्स होने के कारण. इस बार तो अटेम्प्ट्स भी 4 है, और हर अटेम्प्ट में देयर आर 5 और 6 एग्जाम्स. सो 24 डिफरेंट एग्जाम्स में से मेरिट बनने वाला है. सो आई मीन इन within the attempts, I think percentile would vary with score, and 20 to 30 marks का भी variation आ सकता है. Exactly, because in previous years this has happened. Even 30-35 marks पे भी students आपको बिल्कुल exactly same percentile पे मिलेंगे. And one thing that students also should understand is that even with NTA there is a very high probability that there would be errors in the paper. Like I clearly remember in 2020 January attempt, in one of the papers there was a correction of good 30-35 marks. I think it was second last or last correction. So it's a huge number. So that's why almost 10%. So getting stuck with certain question, thinking that I'll be able to get through it, and it might be the case that it is not even correct. So आप ये मान के चलिए कि इंडिया गलतियां करता है, आप अपना बेस्ट दो, आगे मूव करो. बिकॉज पेपर में जैसे सर ने भी पॉइंट आउट किया, इफ यू गेटिंग 55-60% मार्क्स, यू विल एंड अप विद गुड कॉलेजेस वेरी इजीली. एंड इफ यू लुक एट द पेपर, 50% पेपर हमेशा ऐसा होता है which is easily solvable. I think any student who's been thorough with his or her preparation in last couple of years should be able to handle that with ease. उसके बाद हल्का फुल्का मॉडरेट कॉम्प्लेक्सिटी की चीजें होती हैं, तो आपको बेसिकली वो अच्छे क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है वो ढूंढने हैं और उनको बस अच्छे से तरीके से खत्म करना है. एंड गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज वुड easily be a reality. So on top of it, anything you do that will be improving your rank further. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी क्वेश्चन से स्टक नहीं होना, क्वेश्चन से कोई प्यार लगाओ, कुछ नहीं करना, जो बेस्ट दिखता है, इजी लग रहा है, उसे किया और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज किया. एंड में अगर टाइम बचता है और लगता है कुछ अभी भी कुछ है
मतलब some fuel is still left, then maybe you can go for the final kill. But before that, I don't think so. अपना score maximize कीजिए, उसके beyond कुछ और करने की जरूरत नहीं है. Very true, very true. So again, I mean, that we've been again and again reiterating, be very thorough. And अगर आपको जैसे बोलते हैं ना तुक्का भी मारना है तो वो भी सोच समझ कर और वो भी थोड़ी नॉलेज से मारना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधाधुन गोलियां नहीं चलानी है. सो राइट, बी वेरी, उसमें भी थोड़ा स्मार्ट अटेम्प्ट करना है, राइट. इफ यू हैव टू डू इट, वैसे तो अवॉइड करो, इट शुड बी, बिकॉज नेगेटिव देन इट विल टेक यू नोवेयर. And we've seen normalization, especially itna process, itna tedious, it's very complex, even nobody can understand it. So क्या जा रहा है वहां पर, कहाँ जा रहा है, इतने सारे स्लॉट्स हैं, कौन सा आपका डिफिकल्ट स्लॉट था, इजी स्लॉट था, एवरेज स्लॉट था, even you would not know, and you might end up, because I have actually suffered because of that, and I can tell, because मेरे को हमारा एक क्वांट बहुत डिफिकल्ट आया था, आई थॉट नहीं, आई एम नॉट एबल टू गेट इट, मैंने ओवर अटेम्प्ट किया while I was getting into the like top bracket. Because of that quant का over attempt, I got negative and थोड़ा सा पीछे आ गया. So this can happen. And percentiles में बहुत बहुत minor questions में भी आपका बहुत आगे पीछे ranks हो जाएंगे. So like sir said that 30-35 के score पर भी same difference पर भी same percentiles थी, right? So you never know, where you are. So just have faith in your preparation, have faith in yourself, and give your best attempt. Don't think about anything else, right? That is very important. जो 3 hours आपके बच्चों टेस्ट वाले हैं ना, उसमें तो आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं सोचना. देखो, टेस्ट देने के बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक यही डिस्कशन चलने वाली है कि पेपर कैसा आया था, उसका आसान आ गया था, मेरा मुश्किल आया था, है ना. जिसका आसान आया था उसने भी यही बोलना है कि मेरा मुश्किल था, दूसरे का आसान था, है ना. लेकिन जो आपके 3 आवर्स एग्जाम वाले हैं, उसमें आपकी एनर्जी सिर्फ उन चीजों पे होनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे कोई क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपके में ज्यादा गलत है, दूसरे में कम गलत है, या डिफिकल्ट है, इजी है, उन चीजों को छोड़ के जो आता है उसको अटेम्प्ट करना. और जैसे अभी दीपक सर बता रहे थे, अपना स्कोर मैक्सिमाइज करना, पूरी एनर्जी इस पे होनी चाहिए. Relax mindset में रखो. If it is possible, have a piece of chocolate before your exam, because that really helps you in calming down your anxiety. Yeah. Because chocolate always releases good hormones and it really helps in overcoming anxiety, and that's why a lot of people love having chocolates also. Try to avoid any I would say foods, drinks which would trigger anxiety, because I think having coffee can trigger all these things, because anything that basically sets you in a direction where you're not your normal self, just avoid that. Okay. Achhi sleep, sound sleep, have a piece of chocolate, feel good about yourself, feel good about the day, and if possible, ask your parents to wish you on that very day. Happy exam day. It should be like a celebration. It should be a celebration of the fact that you have given your best in last couple of years, and the single day is not going to define you. It is just an opportunity where you're celebrating your preparation and you're trying to maximize your score, just to be on the other side of the good outcome. That's it. और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इसमें एनटीए ने 4 चांसेस दिए हैं. एक जगह थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ चलेगा. 4 दिन खराब नहीं हो सकते. बिल्कुल बिल्कुल, है ना. कहीं ना कहीं एक तो दिन बढ़िया अपना लगेगा ही लगेगा. इफ यू प्रिपेयर्ड वेल, यू विल डेफिनेटली डू वेल at least on one attempt out of the 4 given attempts. So feel relaxed, feel good about yourself, have a piece of chocolate, and just be very calm. That's it. You're giving your best already. Chocolate always helps, है ना. Chocolate always helps. So everybody can. 5-star नहीं. 5-star खाओगे और उसके बाद कुछ नहीं करोगे, वो गलत हो जाएगा. 5-star खाके कभी कुछ ना करने में भी फायदा होता है, वो नहीं सोचना है. पता चला हम 5-star ही खाते रह गए और एग्जाम हॉल में कुछ नहीं करके आए. तो ऐसे नहीं करना. Okay. 5-star people don't sue us, huh? This is not I would say a meeting where you can just sit through and can just relax. करने ही नंबर है. तो कुछ ना करने से भी ठीक है. हाँ, तुक्के नहीं मारने, डिफिकल्ट क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, वो नहीं करना. ठीक है ना. वहां पे 5-star strategy can work. Right. So there's a question. So if we attempt 6 integer out of 10, so what will happen? Which one will be considered? So most probably जो software होगा वो that would not allow you to attempt more than 5 questions. जब आपके 5 attempt हो जाएंगे, उसके बाद जब 6th question आएगा तो आपको I think prompt करेगा.
but this is just a assumption, and most probably I think this is what they would be doing. बाकी अगर फिर भी 6 हो गए तो अभी तक उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया. There is no specific instructions. Most probably it would not be allowed. मोस्ट प्रॉब्ली आफ्टर 5 वो लॉक हो जाएगा और आपको कोई ना कोई अनलॉक करके ही आपका दोबारा वो ओपन होगा. कि जैसे आपने 6th अटेम्प्ट करना है, आपको पहले 5 में से किसी को फिर अनअटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी आपको बेस्ट ऑफ 5 का तो वही मतलब बनता है. Right. Because it is an online exam, it can be controlled. I am sure they would have put in a check. And जैसे सर ने कहा था, इसीलिए instructions become very important tomorrow. And like in this first attempt, because after the first attempt, I think सभी पंडित्स and gurus के सबके बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स आ जाएंगे. बट कल आपको इस पे बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करना है और इंस्ट्रक्शंस बड़े प्यार से देखना है, स्पेशली ऑन दिस पॉइंट कि अगर 5 अटेम्प्ट कर दिया, 6ठा अटेम्प्ट करना है कि नहीं है. आइडियली जो हमने इवन विद Yschool ऐप और उसके सॉफ्टवेयर के साथ भी किया था, we did not allow students to attempt the 6th question. They had to unattempt one question to attempt that question. So it should be the way with the final NT exam. Right. Because tech-wise, this is the best possible way. बच्चों को allow ही मत करो 5th की बजाय 6th attempt करने के लिए, because they give you an option कि अगर आपने किसी को mark किया, you can unmark and attempt some other question, right? So यही best possible way होगा. But अगर फिर भी if they are allowing, तो वो instructions में it would be mentioned कि क्या होगा. अगर instructions में भी नहीं mentioned है तो फिर बेस्ट 5 नहीं लिए जाएंगे. आई थिंक जो 5 ठीक हो रहे हैं, फिर पहले 5 आई थिंक लिए जाएंगे. बट देयर इज नो क्लैरिटी एज ऑफ नाउ. तो कोशिश करो कि 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो पर सब्जेक्ट. Right. Very important. So I think that will clear the doubt. बाकी हमें कल I think कल वाले अटेम्प्ट के बाद थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी for तो आगे वालों के लिए को तो they would know how to do it and all. But tomorrow it is very important for you to know the instructions really well. And so there is a query specifically for chemistry कि अगर organic की नहीं है तो अब क्या क्या पढ़ें? तो बच्चे again last moment it is not going to make much of a difference. ऑर्गेनिक नहीं की है, इसका मतलब क्या है कि अगर 75 क्वेश्चंस आने हैं, 25 इज विद केमिस्ट्री, तो उसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चंस आने हैं. उसमें से 2 से 3 जीओसी में आने हैं, जिसमें नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, ये छोटी छोटी चीजें आनी है, जो मुझे लगता है बच्चे के बहुत एलिमेंट्री 11 बेसिक्स भी क्लियर है तो हो जाएंगे. जहां बच्चा अटकता है वो है बड़ी बड़ी रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स, ये वो. उनके 5 क्वेश्चंस हैं टोटल मिला के, 5 भी शायद ना हो, एक आधा नेम रिएक्शन पे आ जाए, कुछ आ जाए, तो 3 से 4 क्वेश्चंस हैं. 3 से 4 क्वेश्चंस के लिए इतनी अब टेंशन लेने का फायदा नहीं, बिकॉज इट्स वेरी ट्रू दैट इफ यू हैव नॉट फोकस ऑन पर्टिकुलर थिंग, तो कोई तो सेक्शन होगा जहां पे आपने बहुत मेहनत की होगी ऑलरेडी, ठीक है ना, तो इतना छोड़ा जा सकता है. अब बॉदर करने का फायदा नहीं है. वैसे ही 8 मैक्सिमम 9 से ज्यादा क्वेश्चन होने नहीं चाहिए. 1 से 2 जीओसी में चले गए, 1 से 2 इधर नेम रिएक्शन फैक्ट पैक में चले गए, बायोमोलिक्यूल वगैरह में चले गए, तो बचे ही नहीं है रिएक्शन के लिए कुछ खास. उन 3-4 क्वेश्चंस के लिए अपनी नींद उड़ा देना, इतना पैनिक कर जाना डजंट मेक एनी डिफरेंस नाउ. अब करने की जरूरत है, बहुत लग रहा है प्रिपरेशन करनी है, मे बी शायद वो तसल्ली नहीं आएगी, तो कोई जो प्रदीप जैसी कोई सिंपल बुक है, उसके एंड में जो अपेंडिक्स होता है उसमें 40 नेम रिएक्शन दे रखी होती हैं, उनको एक बार रीड थ्रू कर लो. नेम रिएक्शन का भी अपेंडिक्स होता है, फिर डिस्टिंक्शन टेस्ट के भी अपेंडिक्स होते हैं, 2-3 अपेंडिक्स एंड में दिए होते हैं, उनको जस्ट ऐसे नॉवल रीडर की तरह आंखों से निकाल लो, जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि चलो हाँ एटलीस्ट कुछ मेरे दिमाग में आ चुका है, नथिंग बियॉन्ड दैट, कुछ और करने की जरूरत नहीं है. Right. Okay, again there is a query, I think we already talked about it, that is there any facility that if we by chance mark any option that we can change the option? I think before submission it is there, change भी हो सकती है, और I think क्लियर करने की भी ऑप्शन होती है. अगर आप कुछ भी नहीं मार्क करना चाहते हैं तो आई थिंक दोनों ऑप्शंस रहती हैं पेपर में. जब तक फाइनल अटेम्प्ट आपने सबमिट नहीं किया तब तक आपके पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है. Okay, so that is there, right? And again there is how to attempt integer type, like if answer is 4, should we write 4.0 or 4 again? I mean, how to put the it should be up to second decimal point, तो I think आपको पूरा ही लिखना चाहिए 4.00. This is the way it is. Okay, second decimal place तक. और इसको भी इंस्ट्रक्शंस में बहुत क्लियरली मेंशन किया होगा, बिकॉज एनटीए ये मान के नहीं चल रहा है कि आप पहले से
कहीं से कुछ सीख के आ रहे हो, तो अगर वो ऐसा कुछ मांग रहे हैं तो दे विल स्पेसिफिकली मेंशन दैट इन इंस्ट्रक्शन. Right. So again, it becomes very important. But generally, what we have learned from the past experiences, कि अगर आंसर 4 आता है तो आपको 4.00 ही लिखना चाहिए. Right. अगर 4 लिखेंगे तो वो I mean it will not be considered or It can be a problem. तो why to take a risk? तो उसको second decimal point तक बोलते हैं. इस सारे Right. इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ो. अगर वहां पे कुछ ऐसा नहीं है, then maybe you can take a risk. But generally पिछले सालों से हमने जो देखा है, नॉर्मली उसमें यही आपको second सेकंड decimal डेसिमल प्लेस ही बोलते हैं. So very important, and I think there is a very important question. So everybody, who's watching, please take note that even if you have to mark an integer, so 4.00 you have to put it, not 4.00 is very important, right? एक और भी चीज है, आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर हमने ऑब्जर्व किया था कि बिकॉज ये आपको सेकंड डेसिमल प्लेस मांगते हैं, तो जब आपने कैलकुलेशंस कुछ करनी है तो उसकी अप्रोक्सीमेशन कब करनी है. मान लो जैसे पाई की वैल्यू 3.1416 है, तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपने पहले 3.1416 करके मल्टीप्लाई करके लास्ट में अप्रोक्सीमेशन लेनी है या पहले ही लेनी है. तो उस साल जब लास्ट टू लास्ट ईयर 2019 की मैं बात कर रहा हूँ, जो पेपर आया था, तो जिन्होंने सबसे पहले ही हर वैल्यू अप टू सेकंड डेसिमल प्लेस ली थी और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन किया था, उसको ठीक दिया गया था. अगर किसी ने मान लो पूरा का पूरा वैल्यू लेके लास्ट में जाके अप्रोक्सीमेशन किया था तो उसका आंसर गलत आ गया था, बिकॉज बहुत क्लोज ऑप्शंस थी. 0.23, 0.24, 0.25 इस तरह से करके ऑप्शंस थी. तो ये आप पहले ही, अगर इफ इट इज मेंशन्ड कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेना, तो आप लेवल 1 पे ही कैलकुलेशंस में सेकंड डेसिमल प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये काफी अच्छा इंसाइट सर ने दिया है, बिकॉज़ I think nobody काफी वेरिएशन आ जाता है उसमें. actually nobody takes care of this otherwise, though. इट इज एक्चुअली कंट्रोवर्शियल. ऐसी इतनी क्लोज ऑप्शंस देनी नहीं चाहिए, बिकॉज अगर किसी ने ज्यादा डेसिमल प्लेसेस तक लेके कैलकुलेशन करके लास्ट स्टेप में अप्रोक्सीमेशन की है या टू सेकंड डेसिमल प्लेस अगर उसने क्लोज किया है, तो एक्चुअली तो उसने ज्यादा मेहनत की है. बट एनटीए ने उल्टा किया था. एनटीए ने जिन्होंने पहले ही सेकंड डेसिमल प्लेस तक लेके किया था ना, ये लास्ट टू लास्ट ईयर. आई थिंक इट इज समथिंग टू डू विद सिग्निफिकेंट फिगर्स. सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपको है ही डेसिमल पॉइंट अलाउड एक पर्टिकुलर लेवल तक, तो तुम उतना ही सब कुछ लेंगे. सो दैट माइट बी द रीजन व्हाई एनटीए डिड दैट. तो बट हमने देखा कि 19 वाज द फर्स्ट ईयर with this thing, so they were not very well prepared also in terms of the exam conducting agency. 20 में ऐसा कुछ नहीं. 20 में ऐसा कुछ नहीं था. 20 में they were way better. I don't think so. मतलब अगर जनवरी टाइम में कुछ कसर थी तो सितंबर टाइम में वो सब चीजें भी आरंभ हो गई थी. मतलब सितंबर टाइम was pretty much flawless. Right. Okay. Good, great. So, sir, there is another question. How to make an intelligent guess? So, if we take 2 options, eliminate 2 options out of 4, and we are left with 2 options. So, कैसे mark करना चाहिए? इन्हीं मिनी अगर आपको आंसर नहीं पता तो अगर तो कहीं पे थोड़ा सा भी 50-50 मतलब 2 ऑप्शंस रह गई हैं बट 50-50 नहीं 60-40 में है, तो उसको कर दो. अदरवाइज जो गट फील पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है आपके दिमाग में, उसको आप, बिकॉज आपको पता तो नहीं है लॉजिकली, तो आप कहीं नहीं पहुंच पा रहे हो, तभी आप फंसे हुए यहाँ पे ऑप्शंस में. बट अगर 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गई है तो रिस्क ले लेना चाहिए. फिर आपको एक ऑप्शन मार्क करनी चाहिए. 50% because chances of being correct, right? Right. Perfect. So एक क्वेश्चन है कि 12th की फिजिक्स कम आती है, तो क्या करना चाहिए? इसमें एक और अच्छा पॉइंट ये आ जाता है कि कम देखो, जो एग्जाम्स हैं उनमें दे हैव अ फिक्स पैटर्न. जैसे केमिस्ट्री में भी पर्टिकुलर सेक्शंस पे ज्यादा फोकस रहता है. सेम इज द केस विद फिजिक्स आल्सो. थोड़ी ऑफ बीट चैप्टर्स जैसे कि वेव्स, थर्मोडायनेमिक्स, आपके ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जो इतने डिफिकल्ट नहीं है रिलेटिवली, उनमें से भी ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज आती है, इफ नॉट मोर. तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये डिफिकल्ट चैप्टर्स में ज्यादा एनर्जी लगाते हैं सोच के कि इसमें ज्यादा कुछ पूछा जाएगा. बिकॉज टीचर्स के पर्सपेक्टिव से भी ऐसा ही होता है कि इनिशियल चैप्टर्स में शायद थोड़ा टाइम भी मेजॉरिटी जगह पे उसमें ज्यादा जाता है, तो बच्चों को लगता है कि शायद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, पर सीक्वेंस के कारण ऐसा होता है. तो अगर नहीं आता है, कम आती है, तो उन चैप्टर्स में फोकस करो जो इजी है. जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ऑप्टिक्स हो गया. इन चैप्टर्स में बहुत सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आने हैं. कोई बहुत ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चंस कोई पूछता नहीं है, और वेटेज उतनी है, शायद थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है. तो स्कोर करना इन चैप्टर्स के बेसिस के ऊपर थोड़ा रिलेटिवली इजी हो जाता है.
जो चैप्टर्स डिफिकल्ट हैं छोड़ देना चाहिए, बिकॉज कई बार चांसेस है शायद उसमें पेपर ही ना आए। हम इतनी टेंशन, इतनी स्ट्रेस में कुछ मतलब इतना कुछ कर रहे थे और पता चला उसमें से 2 क्वेश्चंस आए या क्वेश्चन ही नहीं पूछे। राइट, एंड इट्स ओनली फॉर लास्ट मिनट। मतलब ये मत सोचें कि छोड़ देना, कहीं कहीं हमारे 12th के स्टूडेंट्स हो जो 12th में जा रहे हैं, दे थिंक कि ये हम सब छोड़ देते हैं। इट इज ओनली बिकॉज इट्स लास्ट मिनट। प्लीज कंडीशंस अप्लाइड। जो भी चीजें बोल रहे हैं यहाँ पर एक्सपर्ट की, दीज थिंग्स यू कैन लीव इज ओनली बिकॉज नाउ इट इज लास्ट मिनट, सो यू हैव टू मैक्सिमाइज योर टाइम, राइट? प्लीज डोंट टेक इट कि हाँ इसमें से क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे या सो इट इज ओनली मार्च एंड अप्रैल अटेम्प्ट के लिए आपने ये सब कुछ करके जाना बच्चों। और इनफैक्ट इसके लिए हम लोग एक क्रैश कोर्स भी प्लान कर रहे हैं। जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनका तो सारा सिलेबस ऑलरेडी कवर्ड है, और उनके पास जो पूरा जो लास्ट ईयर उनका गया उसके सारे वीडियो लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं। बट जो स्टूडेंट्स अगर इंस्टीट्यूट में नहीं थे और या उन्होंने कोचिंग नहीं ली है ड्यूरिंग दीज 2 इयर्स, या लास्ट ईयर कोविड के कारण मिस हो गया है, तो 8 मार्च से हम लोग एक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, which is a 35 to 40 days course, जिसमें +1 +2 पूरा कंपटीशन पर्सपेक्टिव से करवाया जाएगा। तो जो अप्रैल अटेम्प्ट आपका होने वाला है, मार्च तो बहुत जल्दी है, मार्च के लिए टाइम नहीं है, अप्रैल के लिए हम लोग आपको पूरा तैयार कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने पहले नहीं प्रिपेयर किया, अगर कोई आउटसाइडर्स ने ज्वाइन किया है, तो दे कैन ऑलवेज ज्वाइन दैट कोर्स। Right. Very important. So you can always join. You can enroll yourself for the crash course, so that anything that has been left that you've not prepared for, everything will be covered there. So that is very important. Sir, I think we can now wrap it up. Before wrapping, there's one very important question. I mean, I think student ne basically expressed what he or she is feeling at that time, and I think most of the students at this time, they feel that I think due to panic I'm forgetting everything. So I have 2 days. I was expecting this question. Yes, I have 2 days. What should I do? I think most of the would be ये बुरा साइन नहीं है, ये अच्छा साइन है। अगर कोई बच्चा भूल रहा है, पैनिक हो रहा है, तो वो अच्छी बात है। इसका मतलब एटलीस्ट उस एग्जाम को लेके बहुत सीरियस है। तो इससे डरना नहीं है, इसे एंजॉय करना है। और ये हर किसी के साथ होता है। जो जिस इंसान ने पहली बार स्टेज पे जाके परफॉर्म करना होता है, you talk about artists, you talk about sports person, they still feel that same pressure. कल इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट मैच होने वाला है, और जो विराट कोहली है उनको भी इसी तरह से इस टाइम पैनिक अटैक्स आ रहे होंगे, इस टाइम से टेंशन हो रही होगी। So anybody who's a performer or who's worried about his or her performance because उसमें वो excellence deliver करने की capability है, उसमें anxiety आएगी। Talk about anybody in this world, जिसको कल जाके कहीं कुछ भी परफॉर्म करना है, वो आज मतलब बैठा बेचारा भगवान नाम ही जप रहा होगा। तो इट्स अ वेरी गुड ओमन, डोंट वरी अबाउट इट, दैट मीन्स यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर स्टडीज, दैट इज व्हाई इट इज इम्पैक्टिंग यू, इट इज अफेक्टिंग यू। और हमारा ब्रेन स्ट्रेस में, टेंशन में सबसे अच्छा काम करता है। बच्चों को बहुत बार क्लास में बता चुका हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के अराउंड सबसे ज्यादा मेजर इन्वेंशन डिस्कवरीज हुई है। आप कोविड का एग्जाम्पल लेके देखो, HIV वायरस हो गया, अबोला हो गया, बहुत सारी सी बीमारियां आई हैं जो शायद कोविड से भी ज्यादा खतरनाक थी, बट उनके इलाज अभी तक प्रॉपरली नहीं मिल पाए हमें। कोविड ने बिकॉज पूरी दुनिया हिला दी, इतना मेजर इंपैक्ट लाया, इस साल के अंदर वैक्सीनेशन आ गई, वो भी एक नहीं, हर कंट्री के पास 2-2 3-3 आ गई हैं अब तो इसका मतलब क्या है? स्ट्रेस में हमारा दिमाग सबसे बेस्ट काम करता है। जब हमें पता है वी बीन पुट अगेंस्ट अ चैलेंजिंग सिचुएशन, देन वी कम आउट विद आवर बेस्ट। इसलिए इस टाइम पे कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं। जो चीजें खुलती हैं, रट्टे वाली हैं, सिर्फ उनको ध्यान में रखो। सिंपल फॉर्मूले, सिंपल क्रैमिंग थिंग्स, नो न्यू क्वेश्चन, नथिंग। अगर अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उन्हें रिवाइज करने से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। अगर कुछ प्रीवियस पेपर्स अटेम्प्ट किए, उन्होंने अपनी गलतियां मार्क कर रखी हैं, उन्हें दोबारा रिविजिट करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो जस्ट revisit things which you have already done. You don't have to panic at all. It's a very good omen. It's a good sign. इसका मतलब आप पेपर को लेके सीरियस हो, आप अच्छा करके आओगे ही आओगे। Wow, this is a new perspective. I think जो मैंने भी पहली बार सुना है, but it is very important, and I think everybody should think like this, है ना? हम क्या करते हैं, हम पैनिक हो रहे हैं, we getting बहुत पैनिक हो रहा है, I'm forgetting everything, and then we start to build upon on that, and then वो 2 दिन भी जो था उसमें भी पैनिक, and then we just किसी से भी बात करोगे, वो पैनिक हो रहा है, तेरे को पैनिक हो रहा है, क्यों हो रहा है? I think that only blows up the whole thing. So feel good about it, be happy. होता है जिसको टेंशन होती है, जिसको उस चीज की कदर होती है, ठीक है ना? तो इंसान मस्त मौला जिसने कुछ नहीं किया और जिसके लिए वो चीज मैटर ही नहीं करती, उसे पैनिक होगा क्या?
ठीक है ना। पैनिक किसे होगा? जिसे उस चीज की कदर है, जिसे उस चीज की इंपॉर्टेंस समझ आती है। तो इंपॉर्टेंस समझ आती है तो डेफिनेटली अपना बेस्ट तो ऑलरेडी दे चुके हो ना। राइट, पैनिक हो रहा है इसका मतलब उसके लिए वो चीज इंपॉर्टेंट है। वेरी ठीक ट्रू। है ना? बच्चा रोता है तो दिल किसका दुखता है? मदर का दुखता है ना। ठीक है ना। पड़ोसियों का तो नहीं होता, बिकॉज बच्चे के लिए कंसर्न है। सेम चीज है, आपका एग्जाम के लिए कंसर्न है इसलिए पैनिक हो रहा है। इट्स अ यस, गुड साइन, इट्स नॉट अ बैड साइन। और बेटा भूलना नहीं होता, आपको याद होता है वो जब आप, अगर आप जैसे दीपक सर ने बताया, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहोगे, अगर थोड़े से रिलैक्स रहोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको पेपर में भूलना होगा, सब कुछ आपको याद ही होगा। बट आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप रिकॉल कर सको, आपकी जो मेमोरी है आप उसमें से उसको रिकॉल कर सको। उसके लिए बेटर फ्रेम ऑफ माइंड में होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज किसी को कोई चीज नहीं भूलती है। स्पेशली जो रिसेंट 2 इयर्स में की है और जिसके ऊपर बेस्ड इतने टेस्ट किए, इतने क्वेश्चंस किए हैं, इतना टाइम लगाया है, वैसी चीजें भूलती नहीं है इतनी जल्दी। और ये पेपर में जाके 3-4 क्वेश्चन तक तंग भी करता है। कई बार क्या होता है, किस्मत बहुत ही खराब हो, आप पेपर खोलते हो 3-4 क्वेश्चन ऐसे आगे जो टॉपिक अच्छे से आते नहीं है, तो वो चीज और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। पर वो 3-4 क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन जैसे ही निकले, थर्ड क्वेश्चन तक वो हाथ सेट होना शुरू हो जाता है, एंड देन पैनिक सेट्स साइड एंड आप अपने फ्लो में आना शुरू हो जाते हो, और मिडिल ऑफ द पेपर तो भूल ही जाते हो पेपर में बैठे हो। Yes. That is why I think Reshmi sir also mentioned that it's very important to scan the paper through. So अपना इसलिए सबसे first thing, ये मैं again इसलिए because now we'll be ending the session soon. So those who probably they were not there in the beginning. So it is very important कि आप अपना पूरा paper जरूर scan करें पहले. Just I think 5 to 10 minutes, sir, they should spend, or 15 minutes and 5 to 10 minutes. I think एक बार देख लें पूरा paper. Just go through the questions quickly. 75 questions है, फटाफट से एक बार नजर मार लें 5 minutes में, 5 and then to start attempting the paper. बिल्कुल, ताकि आपको पता हो कि हाँ दीज आपको एक बार में दिख जाएंगे जो आपके फेवरेट क्वेश्चंस है, फेवरेट टॉपिक्स हैं, यू वुड डेफिनेटली यू विल गेट टू सी देम। तो वो पहले चूज कर लो फटाफट से, एंड जो आपके खतरनाक टॉपिक्स के हैं उनको पहले अलग कर दो, सो दैट व्हेन you are in you have like the paper has gone your way and you are in a better frame of mind, then only attempt those, and when you know that other आपने easy वाले सारे attempt कर लिए, you're not missing out on any easy question. So that is very important, right? And अभी जो हम भूलने की बात कर रहे थे, one thing that I can recall, I read about it somewhere. So there is a technique probably NLP में use करते हैं, back counting. So if you are giving an exam, you're about to give an exam and you feel that you're forgetting everything, just start back counting. जहाँ से भी कर सकते हो आप, maybe start from 100 and then do the back counting if you have time. So back counting करो, उससे it is scientifically said that you would recall everything. So you can try that. I haven't tried it yet because मैं तो exam नहीं दे रही हूँ, thank God. So I haven't tried it yet, but probably you guys can, and then do let me know if it worked for you or not, right? But मेरे ख्याल से वो work करता है. So you will definitely you'll do the back counting and you'll with magic you'll recall everything. So जरूर ये आकर हमें जरूर बताना, is this trick work for you or not? But I think it will work, right? Neuro-linguistic program, it's a very it's a highly scientifically designed program, so there has to be some base to it, right? So sir, any last comments or last tips or last minute tips and tricks for the students, at which any closing note, so that then we'll close it for them, so they can just enjoy their day today, tomorrow, and whenever they have exam, and then go there with a very happy mindset, with a happy mood. And I think one thing is that's very important, to keep that smile on their face when they enter the exam hall, right? सबको डरा दो, ऐसे हंसते हुए जाओ कि बाकी बच्चे तो अपने आप ऐसे पैनिक में आ जाएंगे, वो ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है, राइट? So all of you, I think that is also very important. So anything, any last? Basically बच्चों, बस याद रखो at the end of the day that this is just an exam and this will not define your life. मतलब ये this is just one of the small tests and one of the many tests that you are going to go through in your life. तो इसको उसी माइंडसेट में अटेम्प्ट करो कि दिस इज अ सीरियस अटेम्प्ट, बट इतना सीरियस नहीं है कि लाइफ एंड डेथ का सवाल है। एग्जैक्टली। तभी आप रिलैक्स्ड माइंडसेट से जाओगे और अपना बेस्ट देके आओगे। आई थिंक अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे यार कि मेरी अच्छी तैयारी है, मैंने अच्छा करके आना है, और अगर बाय चांस नहीं भी हो तो मैं इतना केपेबल हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ, या मैं इतनी केपेबल हूँ कि आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू वेल इन माय लाइफ। अगर आप इस माइंडसेट से जाओगे तो आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होगा। और जाने से पहले जैसे दीपक सर ने बोला था कि एक चॉकलेट खा लो और साथ में जिस भी भगवान में विश्वास करते हो उसको एक बार याद कर लो, एंड थैंक हिम कि आप यहाँ तक पहुंच पाए, आपको इतनी हिम्मत दी कि आपने तैयारी की और आप टेस्ट देने आ गए हो।
जैसे यहाँ तक साथ दिया वैसे आगे भी साथ देना। आई एम श्योर कि सब कुछ बढ़िया ही होगा। एक गीता में अच्छी चीज लिखी है, गीता सार में, मतलब भगवान कृष्ण ये चीज बोलते हैं कि जो फिजिकल हेल्थ है उसके लिए हमें एक्सर्शन करना पड़ता है। मतलब आई एम क्लासिकल एग्जांपल, मैं नहीं करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसके रिपरकशंस क्या होते हैं। जब फिजिकल एक्सर्शन करते हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है। उसी तरह से जो टफ सिचुएशंस होती हैं जहां पे वी आर चैलेंज मेंटली, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करो अगर आप सारी जिंदगी बहुत ऐशो आराम से रहे हो तो आपके ब्रेन की क्या डेवलपमेंट होगी? कुछ भी नहीं। पीपल हु आर born with the silver spoon with all the, I would say, the best things in the world, when they face problems, छोटी सी प्रॉब्लम पे गिर जाते हैं। तो ये एक तरह से भगवान की तरफ से हमें एक मौका होता है जहां पे हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो सके। तो एग्जाम मेंटल हेल्थ को डिटीरिएट करने के लिए नहीं होती है। टफ सिचुएशन क्यों दी जाती है? ताकि हम उसे चैलेंज को एक्सेप्ट करें, हमारे दिमाग की वर्जिश हो, ठीक है ना, उसकी एक्सर्शन हो, उसकी एक्सरसाइज हो, ताकि वो और सॉल्यूशंस ढूंढे और अपने आप को एक्सपैंड करे। तो कल आप जैसे जिम वर्कआउट करने जाते हो, फिजिकल एक्सर्शन करने जाते हो अपनी बॉडी को तंदुरुस्त बनाने के लिए, वैसे कल आप एक मेंटल एक्सर्शन के लिए जा रहे हो अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। तो ये बस मान के रखो दिमाग में। तो इट्स अ perfect important challenge given to you just to improve your mental health, and luckily this is only not the single attempt, तुम्हें 4 अटेम्प्ट मिलने वाली है और उसके बाद सोचो तुम्हारी मेंटल हेल्थ क्या हो जाए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes. Be positive, stay happy, right? And always keep smiling. और स्माइल करते हुए जाना है, राइट? अगर जो हमारे स्टूडेंट्स है, डू क्लिक योर पिक्चर्स, यू नो, विद स्माइलिंग पिक्चर आउटसाइड द सेंटर एंड सेंड इट टू अस. We'll be really happy to have it, to see you smiling, and it will actually help, you know. जो माइंडसेट से हम एंटर करेंगे एग्जाम सेंटर में, वही माइंडसेट से एग्जाम हमारा होगा. सीरियसली, यू नो, इट इज वी हु डिफाइन आवर एग्जाम, नॉट द एग्जामिनर. हम अपने लिए डिफाइन करते हैं उसको, कितना डिफिकल्ट है, कितना इजी है हमारे लिए. वो जो जिसने क्वेश्चन डाला है या जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया वो नहीं करता है. इट इज ऑल ऑन अस. सो वी हैव टू एंटर द एग्जाम हॉल विद दैट हैप्पी माइंडसेट, with a big broad smile on your beautiful faces. And definitely जो दीपक सर ने आई थिंक एक पॉइंट बोला था कि पेरेंट्स को बोलना जरूर दैट यू नो दे शुड विश यू हैप्पी एग्जाम डे, राइट? एज जैसे हम बोलते हैं हैप्पी दिवाली, हैप्पी जन्माष्टमी, गुरपुरब, एवरीथिंग. सो यू नो यू हैव टू विश, दिस इज लाइक एन important part of your important day for you, and it's a happy day. So happy exam day, we all wish you. I think at the count of 3, let's all 3 of us do that for them. 1, 2, 3. Happy exam day, students. Please do your best and keep smiling, and you know, give your best attempt and just kill it. Don't worry, it's just an exam, and you will, all of you are rock stars. You're going to rock it. Yeah, thank you. Thanks a lot for joining us, and all the very best. Best of luck, students. Best of luck, students. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much, experts, for joining us. Thanks a lot. Thank you, man. Thanks.